Hey everyone, welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? I hope you all are good and doing great. I am Swati and in this video I am going to start a new chapter, that is noun, in which I am going to explain uncountable noun and countable nouns in detail. So this video will be helpful for all of you guys. So please watch full video without skipping any part of this video. And second thing, if you still not subscribe my channel, then please subscribe my channel and press the bell icon to get all the updates of my videos, and do like my video. Okay, so without wasting too much time, let's the video begin. Okay, so before moving on to our topic, first we must know what is noun. What is noun? If I ask you what is noun, so noun is something like which we naming something. Which we naming something is your noun. Okay, whatever exists or whichever exists in this universe is your noun. Okay, what I told you, whatever exists in this universe is your noun. Like this marker is a noun. Okay, this board is also a noun. You and I is also a noun. Okay, this air we breathe is what? Is a noun. Okay, the mountains, glaciers, the rivers, the road, this table, chair, okay, this fan and this bulb, or railway station, anything, ठीक है, which exists in this universe is your noun. Okay, now if we talks about like what types of noun exist, लाइक what टाइप से मेरा मतलब है कि आपके इतने सारे नाउन्स हो गए, जो भी कुछ इस यूनिवर्स के अंदर है सब आपका नाउन है. तो इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, हाँ है ना, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना. उसी को बस हम बोल देते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, विच वी कैन काउंट ईजिली. दैन दिस टाइप ऑफ नाउन्स कैन बी कंसिडर्ड एज योर countable nouns. Okay, and which we cannot count easily, these type of nouns considered as your uncountable nouns. Okay, is it clear or not? Okay, fine. Now अब बात करेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन्स आपके कैसे नाउन्स होते हैं, लाइक सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, कैसे होते हैं. क्योंकि जितने भी आपके नाउन्स होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं. किसकी तरह बिहेव करते हैं? आपके सब्जेक्ट ही होते हैं. और सब्जेक्ट हैं तो फिर हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. ठीक है, क्योंकि विदाउट इसके हम पूरे सेंटेंस के अंदर ना उसकी वर्ब को डिफाइन कर पाएंगे, ना पॉजेसिव एडजेक्टिव को डिफाइन कर पाएंगे, ना प्रोनाउन को, किसी चीज़ को हम नहीं बता पाएंगे जब तक हमें नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट इज योर सिंगुलर और प्लूरल. ओके, so uncountable noun behaves as a singular subject. What I said, uncountable nouns behaves as your singular subject. If the subject is singular, then your verb will be singular, your possessive adjective will be singular, your pronoun will be singular. Like everything is singular if the subject is singular, and everything is plural if the subject is plural. Your countable nouns behaves as your plural subject. This means that it takes plural verb with them, and plural plural adjective, plural pronoun, everything will be plural with the countable nouns. Okay, is it clear? Okay, so here are some points which I wrote. So first one is your abstract noun. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक जो भी आपकी फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, वो भी क्या है, आपके अनकाउंटेबल नाउन्स की तरह कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि उनको हम काउंट नहीं कर सकते. लाइक हैप्पीनेस, सॉरो, फेथ, ओके, ग्रेव, ठीक है, ये सब क्या है, आपका अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट करके नहीं बता सकते. लाइक अगर आपको किसी चीज़ का गम हो रखा है तो मैं आपसे पूछूं कितना गम है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 500 ग्राम गम है, 100 ग्राम गम है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, तो जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लाइक आप कितने हैप्पी हो, लाइक ठीक है, आपकी हैप्पीनेस कितनी है आप नहीं बता सकते. ठीक है, तो वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गए. ठीक है, डिसीजेस, जितनी भी बीमारियां हो गई, ठीक है, मीजल्स, मम्स, कोविड-19, ठीक है, ये सब क्या है, आपकी बीमारियां भी आपकी अनकाउंटेबल नाउन्स की तरह कंसीडर होती हैं. ओके, मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक कुछ भी, राइस, शुगर, आपके हेयर हो गए, हेयर को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते. ठीक है, स्नो, बर्फ़, काउंट कर सकते हो कितनी स्नो गिर रही है, नहीं कर सकते. ठीक है, रेन, बारिश को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. ठीक है,
तो आइस, रेन, स्नो, ठीक है, ये सब ग्लेशियर्स, ये क्या है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, वाटर, हेयर, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी क्या है हमारा अनकाउंटेबल। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ERY और AGE लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो उनमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट देख के समझ जाओगे कि हाँ कि अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, ERY और AGE। ओके, लाइक बैगेज, लगेज, ठीक है, सीनरी। यहाँ सीनरी से सेंस है जो दृश्य होता है, लाइक कहीं आप घूमने जाते हो, आपको बहुत सीनिक ब्यूटी जो दिखती है ना, वो सीनरी से मतलब है यहाँ पर। सो अब हम यहाँ पर देख लो, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। आर्टिकल्स, देखो आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं आपके पास, A, N और द। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑलवेज द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ये माइंड में बिठा लो, ठीक है। इट्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, जो सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। इज़ इट क्लियर? अब हम एक एक करके जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसी से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ, ठीक है। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, काइंडनेस इज़ ऑब्लिक आर नेसेसरी। यहाँ बताओ मेरे को, काइंडनेस क्या है, काइंडनेस, बोल्डनेस, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं क्योंकि एक इमोशन दिखा रहे हैं, आप कितने काइंड हो, ठीक है। तो काइंडनेस क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, अभी मैंने बताया आपको रिसेंटली, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर इज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब, आर क्या है, प्लूरल वर्ब, तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज़, क्योंकि इज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब, आर ना होके क्या हो जाएगा, इज़। ओके, काइंडनेस इज़ नेसेसरी। अभी ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस देखो जो मैंने डिसीजेस के ऊपर उठा रखा है। COVID-19 हैज़ स्प्रेड इन माई विलेज। ओके, COVID-19 क्या है, एक बीमारी है, डिसीज़ है। आपको याद है बचपन में जो एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं, जो हम सभी ने लिखी हुई है, लाइक आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, ये सब। तो वहाँ पर क्या है, फीवर क्या है, एक बीमारी है, उससे पहले हम दा लगाते थे, सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ठीक है। तो वहाँ फीवर क्या हो गया, एक डिसीज़ है, जो कि कैसी डिसीज़ है, एक अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कंसीडर होती है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल क्या आता है, दा आता है, इसलिए हम उससे पहले क्या लगाते थे, दा का यूज़ करते थे, ठीक है। अब यहाँ देखो COVID-19 बीमारी है, सो क्या आएगा यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। सो यहाँ हो जाएगा COVID-19 हैज़ स्प्रेड इन माई विलेज, क्या हो जाएगा, COVID-19 हैज़ स्प्रेड इन माई विलेज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है। ये तो मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब का रिलेशन, तो ठीक है। अब बात करेंगे मटेरियलिस्टिक थिंग्स की, ठीक है। दिस ग्लास कंटेन्स सो मच ऑब्लिक मैनी वाटर, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके अंदर आपको अनकाउंटेबल नाउन क्या दिख रहा है, मैंने अभी बताया आपको, वाटर, आइस, स्नो, ग्लेशियर्स, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो यहाँ पर वाटर क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ देखो मच होगा कि मैनी होगा, मैंने अभी आपको बताया ऊपर, सॉरी नहीं बताया, अच्छा ये चीज़ माइंड में रखो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर, बट अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है आपका मच और लिटिल का यूज़ होता है जब हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी या फिर, ठीक है, जब हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी वगैरह को शो करना हो। और जो काउंटेबल नाउन्स हैं इनके साथ आपका मैनी और फ्यू का यूज़ होता है, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। इतनी चीज़ माइंड में रखो, यहाँ पर मच और लिटिल और काउंटेबल में मैनी और फ्यू, ठीक है। ओके, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, मच या फिर मैनी। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मच, ठीक है। दिस ग्लास कंटेन्स सो मच वाटर। अब यहाँ देखो आपका ग्लास, ग्लास में आपको बताऊँ क्या है, ग्लास आपका अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन दोनों की तरह बिहेव करता है। देखो कैसे, ग्लास का यूज़ अगर आप एक सब्सटेंस की तरह कर रहे हो
ठीक है, सब्सटेंस की तरह यूज़ कर रहे हो तभी वो आपका कंसीडर होगा अनकाउंटेबल में। और जब आप ऐसे करके बोल रहे हो लाइक 1 ग्लास ऑफ वाटर, तभी हमें पता चल गया कि हाँ 1 गिलास पानी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तब वो हो जाएगा आपका काउंटेबल। तो यहाँ ग्लास क्या है आपका, जो दोनों की तरह बिहेव करता है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी, ठीक है। तो काफ़ी ऐसी नाउन्स होती हैं जो आपकी अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स दोनों की तरह बिहेव होती हैं, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल पे ही बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये क्लियर हो गया, दिस ग्लास कंटेन्स सो मच वाटर, ठीक है। दिस ग्लास, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए कंटेन्स क्या है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखो, जो कि लास्ट में ERY और AGE पे ख़त्म होते हैं ना, और वो वर्ड्स किस में होते हैं, अनकाउंटेबल में। यहाँ पर देखो ब्रेवरी, बहादुरता, ब्रेवरी, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ERY, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। वैसे तो साफ दिख रहा है ब्रेवरी, इसको आप काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल होगा। और अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी देख लो कि लास्ट में देखो ERY लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। आई एडमायर हर फॉर हर ब्रेवरी, ठीक है। आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एडमायर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ ऑलवेज क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई एडमायर हर फॉर हर ब्रेवरी, यहाँ ब्रेवरी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। अब ये चीज़ क्लियर हो गई अनकाउंटेबल नाउन की। मैंने क्या बताया आपको, जितनी भी चीज़ें जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, विच यू कैन नॉट काउंट ईजिली। लेकिन एक चीज़ देखो, मैंने कहा कि देयर आर 2 persons इन दिस रूम, देयर आर 3 persons इन दिस रूम, ठीक है। सो आप इजीली काउंट कर लोगे। मैंने आपसे पूछा कितने पर्सन है इस रूम में, आप कहोगे हाँ ठीक है 2 पर्सन है, 3 पर्सन है। वहीं आपको छोड़ दिया जाए कुंभ के मेले में, अभी पूछा जाए कितने लोग हैं, तभी बता लोगे, तभी यही पर्सन वहाँ जाके अनकाउंटेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी नाउन्स होती हैं जो आपकी काउंटेबल भी होती हैं, अनकाउंटेबल भी होती हैं, डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ और कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। चलो अब बात करेंगे काउंटेबल नाउन्स की, जो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है और प्लूरल वर्ब लेता है, और सेंटेंस के अंदर सब कुछ प्लूरल ही लेता है, ठीक है। प्लूरल एक साथ नहीं बोल सकते, प्लूरल नहीं बोल सकते यार। चलो ठीक है, अभी देखो काउंटेबल नाउन से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला देखो, सिया हैव ऑब्लिक हैज़ मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ बताओ आपको क्या ऐसे कोई वर्ड दिख रहा है जिसको आप काउंट कर सकते हो, हाँ आप बोलोगे हाँ दिख रहा है, फ्रेंड्स को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपसे पूछा जाए आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आप बता दोगे, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं महान लोग, उनको पता ही नहीं उनके कितने फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही। सिया हैव हैज़ मच ऑब्लिक मैनी फ्रेंड्स। अब यहाँ फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट है भैया, प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा, मच आएगा कि मैनी आएगा, ऑब्वियसली मैनी आएगा। मैनी और फ्यू का यूज़ करते हैं हम काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, मैनी, मच को मारो गोली, ठीक है। और यहाँ देखो हैव ऑप्लिक हैज़ भी लगा हुआ है, क्या आएगा, हैव आएगा कि हैज़ आएगा, तो वो डिपेंड करता है आगे वाले सब्जेक्ट पे। सिया क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिया अपने साथ क्या लेंगी मैडम, हैज़ लेंगी कि हैव लेंगी, हैज़ लेंगी, है ना, क्योंकि सिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगी ना, प्लूरल क्यों ही लेगी, वो नहीं लेगी ना, फालतू की बात करते हो। चलो नेक्स्ट देखो, एट होम कॉमा छोटा सा, देयर इज़ अ बॉय और 2 गर्ल्स, ठीक है। बॉय देखो, अ बॉय, आ क्या है, आर्टिकल। मैंने बताया यहाँ पे आपको वर्ब प्लूरल ऑल यहाँ पर है कि यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ भी कर सकते हो आप, एन आर्टिकल का यूज़ भी कर सकते हो आप, और द आर्टिकल का भी यूज़ कर सकते हो। काउंटेबल नाउन्स में देयर इज़ नो बाउंडेशन, आप तीनों आर्टिकल्स को उठा के लगा दो, तीनों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, कहाँ करना है वहीं कर सकते हो, यानी कहीं भी लगा दोगे। और सारी ही पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो बाउंडेशन, ठीक है। सो एट होम देयर इज़ अ बॉय, एक बॉय है क्योंकि इससे पहले ए आर्टिकल लगा हुआ है, ए जैसे पहले लगा होता है मीन्स एक सिंगल बंदे की बात हो रही है। अ बॉय मीन्स एक लड़का है, काउंट करके बता दिया, और 2 गर्ल्स, लड़कियाँ कितनी हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 2 गर्ल्स हैं, तो क्या है, काउंटेबल है इसमें, तो देयर इज़ अ बॉय और 2 गर्ल्स, कुछ एरर है ही नहीं। एट होम देयर इज़ अ बॉय और 2 गर्ल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आई हैव फ्यू ऑप्लिक लिटिल चॉकलेट्स, क्या आएगा, फ्यू आएगा कि लिटिल आएगा, डिपेंड करता है चॉकलेट्स पे।
चॉकलेट्स को आप काउंट कर सकते हो ईजिली, ओके कर सकते हो ना। काउंटेबल नाउन्स है, काउंटेबल नाउन्स है मीन्स इसके साथ क्या लेगा अपने साथ, ये चाय कॉफ़ी कुछ तो लेगा, मीन्स मैनी लेगा कि फ्यू लेगा, लिटिल लेगा कि मच लेगा, क्या लेगा, लिटिल और फ्यू दो ही दे रखा है, तो लिटिल तो हो जाते हैं भैया अनकाउंटेबल नाउन के साथ, इनको उधर ही कंफर्ट जोन मिलता है, इधर नहीं मिलता, तो ये यहाँ से तो टपक लिए, यहाँ फ्यू हो जाएगा, फ्यू आएगा, आई हैव फ्यू चॉकलेट्स बिकॉज चॉकलेट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब नेक्स्ट देखो, देयर वर 6 चेयर्स इन द रूम, कितनी चेयर्स हैं, 6 कुर्सियाँ हैं, 6 हमने काउंट कर ली। चेयर्स क्या है आपके, काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए देयर वर 6 चेयर्स इन द रूम, पूरा सेंटेंस सही है, कुछ नहीं है एरर इसमें, ठीक है। सो मैंने आज की वीडियो में आपको क्या बताया, मैंने बताया वट एवर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज़ योर नाउन, ठीक है, किसी भी चीज़ की नेमिंग करनी हो सब कुछ आपका नाउन है, ये मार्कर आप, मैं जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, ये नॉलेज, मैं खुश हूँ, दिस हैप्पीनेस, आप उदास हो, आपकी जो सौरो सॉरी ऐसे कह रही हूँ, ठीक है, बाकी आइस, स्नो, ठीक है, रेन, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, किसी भी चीज़ की नेमिंग करनी हो, ठीक है, दिस बोर्ड, दिस सोफ़ा, चेयर, कुर्सी, ठीक है, दिस वॉल एंड रोड, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी पर्सन, एनीथिंग इज़ योर नाउन, फेथ, ठीक है, ब्रेवरी, एनीथिंग इज़ योर नाउन, ठीक है, एंड डिपेंड करता है वो नाउन कैसा है, विच यू कैन काउंट ईजिली और यू कैन नॉट काउंट ईजिली। अगर आप काउंट नहीं कर सकते देन अनकाउंटेबल नाउन, काउंट कर सकते हो तो काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। और टाइप्स की नाउन्स भी होती हैं लाइक इनसेपरेबल नाउन्स, और कुछ ऐसी नाउन्स जो प्लूरल होती हैं बट सिंगुलर की तरह बिहेव करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिंगुलर होती हैं बट प्लूरल की तरह बिहेव करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों की तरह ही बिहेव करती हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोस में देखेंगे एक एक करके। ये नाउन का आपका स्टार्टिंग वीडियो था, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट, कोई शंका अगर आपके माइंड में रह गई हो देन आप कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करके, मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। एंड yes, if you like this video then please share my video and subscribe my channel and like करो, ठीक है, and bye bye।